which chapter we are doing, as I told you all. We'll be starting with alternating current. I have sent you all the videos also. So I'll revise the basic formulas and then we'll do the sums of your government textbook. Sir, so I had a doubt in last time's electromagnetic lecture. Sir, while discussing magnetic meridian, you had given us a term LBH. Sir, I don't remember the full form. Could you give it? Learn by heart. Oh, sorry. Okay, ठीक है? Yes. चलो, listen how I am. Thank We you are so much. 4:45. चलो 4:45 done. So 11 students are there. Students लोगों को ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं कुछ important formulae. And then after doing this, there are some couple of questions of the government textbook which I'll be discussing, and then we will finish it off. सबसे पहला आपको पता है कि ओके जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसका इक्वेशन क्या रहता है? E is E naught sin omega t. Hello, what is this called as? Instantaneous EMF. What is this called as? याद है ना? Peak value. Peak value. So if a resistor is there and if an alternating EMF is sent over here, a current will be generated and this current will also be alternating. बराबर है? So what will be the formula for alternating current? Yes, do you remember? I is I naught sin omega t. What is I naught? Instantaneous. E naught by R. Hello. I naught is E naught by R. ये हमने basically पढ़ लिया था. This is alternating EMF and this is alternating current. अच्छा, इसमें और एक टर्म डिफाइन होता है called as which value? RMS value. Everything was there in the videos. Can anyone tell me what is the relation between peak value and RMS value? IRMS was peak upon root 2. वैसे ही ERMS is also E naught by root 2. ठीक है, ये चीज ठीक है, ये बेसिक्स है which is there. So RMS value, peak value, instantaneous value, तीन चीज हमने पढ़ी. RMS value, peak value. Now we'll start about alternating circuits. Alternating circuits. In this chapter, how many circuits are we going to study about? सबसे पहला resistor, inductor and बोलो Capacitor. ये सब चीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ी है. ओके यार, इसके अपोजिशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. इसके अपोजिशन को क्या बोलते हैं? Inductance. No. It is called as inductive reactance. What happened? Opposition. XL का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा L, which is 2 pi FL. Please see the videos. वैसे इसके अपोजिशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस. No. Capacitance. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्या वीडियो नहीं देखा क्या आप लोग ने? XC is 1 upon omega C, which is XC is 1 upon 2 pi FC. I have sent you the videos, like 3 videos I have sent, man. What happened? Okay, इसका खुद का नाम रेजिस्टर है. रेजिस्टर, इसका नाम क्या है?
इंडक्टर, इसका नाम क्या है? कैपेसिटर. It will oppose the current in the opposition is this. This is the opposition. Opposition is this. I don't want to waste time over here. Okay. Opposition ये सब है. Okay. I'll go to the next slide and discuss each and everything with formula. In case of resistor, मतलब अगर सिर्फ R आपने लगाया, then alternating EMF. What is E का equation coming? E naught sin omega t. What is the I का equation coming? I naught sin omega t. And I say over here the current and the voltage both are in the same phase. Current and EMF are in which phase? Same phase. So nobody is leading and nobody is lagging. What is the relation between E naught and I naught? E naught will become I naught into R. वैसे ही E RMS will also become I RMS into R. And both are in the same phase. का wave diagram कैसे आएगा? वीडियो तो देखना पड़ेगा, वरना नहीं आएगा आपको. So E naught will be greater ये than ऐसे I है naught. और ये I naught है. Sine graph. Same phase. So They are in the same phase. तो चालू साथ में होगा, खत्म साथ में होगा. Yes or no? Yes, sir. yes, sir. This is the waveform diagram. And this is the phasor diagram. सब चीज वीडियो में एक्सप्लेन्ड है एकदम डिटेल में, डेरिवेशन के साथ में. बराबर है? हेलो, नेक्स्ट वन. इन केस ऑफ होम, सेकेंड वाला कौन है? Inductor. एल. इंडक्टर में अगर आपने अप्लाई किया ईएमएफ, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो कोई बता सकता है यहाँ पे करंट कितना आएगा? I naught sin omega t minus pi by 2. वेरी गुड बेटा. आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. कैन एनीवन टेल मी हु लीड्स एंड हु लैग्स? Current I lags. is lagging. करंट लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2 रेडियंस. और उल्टा भी बोल सकते हैं. हेलो, ईएमएफ लीड्स करंट बाय 90, ये भी बोल सकते हैं हम लोग. बराबर है क्या? अगर इसका फेजर डायग्राम में बनाने जाओ तो करंट पीछे है, ईएमएफ एंड एल आगे. बराबर है? कितना डिग्री से? 90. हेलो, तो अगर मैं आपसे कहूँ वेव डायग्राम अगर बनाना है, रेफरेंस किसको लिया है हमने? ई को लिया है ना. रेफरेंस ई को लिया हमने. दिस इज ई डायग्राम. आई का डायग्राम कैसे है? हेलो, so lagging. So sine. Half. Cos. Sorry. Cos wave. देखो क्या करना है. व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा. Yes, sir. तो इट इज माइनस कॉस थीटा, इट इज नॉट प्लस कॉस थीटा. हेलो, Yes, sir. यहां से चालू होगा. सही है क्या? दिस इज व्हाट आई कर्व. हेलो, दिस इज माइनस कॉस ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी. माइनस कॉस तो ऐसे ही होता है ना. हेलो, पता है ना आप लोग को तो. अच्छा, इसमें अपोजिशन कौन है? हु इज द अपोजिशन?
XL, which is omega L, which is 2 pi FL. इसका नाम क्या है अपोजिशन का? क्या हो रहा है? Inductive reactance. जैसे E was IR, वैसे E is I into XL. EL is I into XL. बराबर है क्या? ओके, जैसे ER was IR, वैसे E will become I into XL, where XL is the opposition. समझ में आ रहा है? And this can be RMS or P. को न्यूमेरिकल्स में हम लोग को समझ में आएगा कैसे आता है. Should I go to the next slide? Yes or no? Sir, could you come on back to the last? Yeah, sir, done, sir. अभी ये कौन है तीसरा वाला? इन केस ऑफ कौन है थर्ड वन? कैपेसिटर. कैपेसिटर में क्या लगा है? ईएमएफ लगा है. E is E naught sin omega t. Can anyone tell me करंट क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो. I naught sin omega t plus omega pi by 2. वेरी गुड बेटा. इसको क्या लिख सकते हैं? cos omega t. Who leads and who lags? I is leading. Current leads. EMF by 90. तो अगर करंट आगे है तो EMF को अगर रेफरेंस बनाएंगे तो करंट आगे है ना बेटा, तो ये EC हो जाएगा और ये I बराबर है. बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. ये सही है. अच्छा, इसका वेव डायग्राम बनाना है तो रेफरेंस किसको लिया? E को रेफरेंस लिया. ये E है. I क्या रहेगा? प्लस कॉस ना. अरे बोलो. Yes, sir. अच्छा, who is the opposition? XC. XC 1 upon omega C. नाम क्या है इसका? Capacitive reactance. फॉर्मूला क्या रहेगा? E is I, R की जगह क्या आ जाएगा? I into XC. The EC will be I into XC. This could be RMS also or peak also. बराबर है. वो सम्स में आपको समझ में आएगा कैसे. हेलो, yes or no? Next, copied. This is all done in the synopsis. I am repeating the synopsis only. अगर आपने तीनों वीडियोस देखे हैं तो थर्ड वीडियो में तो यही तो है सब टाइम पास. चलो, इन केस ऑफ अभी क्या बात करेंगे? इन केस ऑफ LCR सर्किट. मतलब क्या? हेलो, तीनों साथ में. All three connected together. All three of them together. L C R. इसको लगाया, E को लगा दिया. क्या फ्लो हुआ? करंट. तो बता सकता है इधर अपोजिशन कौन है? रेजिस्टेंस है. एंड इधर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज. इधर करंट लीड्स एंड इधर करंट. बोलो. सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दिया. ये L होना चाहिए. हाँ, ये L होना चाहिए. सही है भाई. ये L है ना. तो यहाँ पर अपोजिशन कौन आएगा? XL आएगा ना. यहाँ पर अपोजिशन आएगा XC which is 1 upon omega C. यानी यहाँ पर अपोजिशन आएगा R. यहाँ पे करंट लैग्स, करंट लीड्स, एंड यहाँ पे करंट एंड EMF बोथ आर इन द सेम फेज. सही है. हेलो हेलो. Sir. Yes. अच्छा, what is constant throughout in the series? करंट. तो इधर अगर वोल्टेज मांगता है EL, can I write this will become I into XL? इधर अगर वोल्टेज मांगता है EC तो will become I into XC.
और इधर अगर वोल्टेज मांगता है ई आर विल बिकम आई इनटू आर. IR. हेलो, यस और नो? Yes. Sir. But are they all in the same phase? Is No. EL, EC, ER in the same phase? No sir, one is leading, other is lagging. तो हमको इधर का फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा. सुनो मेरी बात, अगर मैं रेफरेंस करंट को पकड़ता हूँ बिकॉज करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ER तो इधर आएगा सेम फेज में. हेलो, EL ऊपर आता है और EC सपोज नीचे आता है, सही है क्या? एंड मैंने Yes. यहाँ पर मान लिया है कि EL इज ग्रेटर देन EC, ऐसे मान लिया है. मैंने क्या माना है कि सर्किट इज मोर इंडक्टिव, सर्किट इज मोर इंडक्टिव. तो EL माइनस EC यहाँ पर आएगा. अरे भाई अभी 2 साल हो गया यार, क्या टाइम पास कर रहे हो इधर, समझ में आ रहा है क्या बात Yes, आपको? sir. Yes, इससे निकाल- इन सब का रिजल्टेंट क्या मिला? ई नेट. कैन आई से दिस एंगल इज फाई? हेलो, अच्छा, इफ आई अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैन आई से ई नेट विल बिकम अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर. हेलो, Yes, sir. yes, sir. इधर से आई कॉमन निकाल दे बिकॉज ई आर ई एल ई सी में से आई कॉमन है ना, यहाँ पर आई कांस्टेंट है ना, तो आई अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये आई बाहर निकल गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर I. प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. आई नीचे आ गया तो ई नेट बाय आई इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. व्हाट इज ई नेट बाय? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल अपोजिशन, एंड टोटल अपोजिशन का नाम क्या है? Z impedance. Impedance. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. दिस इज द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. क्या मैं इंपेडेंस का भी फेजर डायग्राम बना सकता हूँ? क्या नहीं से यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर EL की जगह XL आएगा, यहाँ पर XC आएगा, तो XL माइनस XC इधर किधर आ गया, प्रोवाइडेड XL इज ग्रेटर देन XC, वरना नीचे आएगा. ये क्या आएगा? ये Z हो गया, बराबर है क्या? हेलो, और ये एंगल फाई, इसको बोलते हैं फेज एंगल. क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्या बोलते हैं Phase इसको? angle. फेज एंगल. Phase angle. अच्छा, फेज एंगल. अच्छा, ये फॉर्मूला तो मुझे मिल गया, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. कॉस फाई क्या निकालेंगे यहाँ से? डायग्राम से निकालो कॉस फाई, R R by Z. by Z. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टर्म का नाम मालूम है क्या? इसको क्या बोलते हैं? Power पावर फैक्टर. factor. एंड व्हाट इज tan phi इन द सब? tan phi XL minus XL XC by minus R. XC by R. This is very very important है बेटा. हेलो, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, ये Z का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, cos phi का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट. हेलो बोलो, सही है ना? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज फाइन. अच्छा, यहाँ पे करंट क्या करता है? करंट देखो, आपने देखा ई नेट ये मिला, देखो हाँ मेरी बात सुनो, ई नेट ये मिला, करंट कहाँ है? करंट ये है, ये है ना करंट. कौन Yes, आगे है sir. कौन पीछे है? ई नेट आगे है, आई नेट पीछे है. So I net, can I say this is I net man? Understood or not? I net is I only Yes ना? sir, yes sir. Yes, sir. Can I say I पीछे है E के? कितना एंगल पीछे है? Right. तो can I say this I का इक्वेशन बनेगा, I का इक्वेशन बनेगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? I पीछे है ना E के, E नेट के पीछे I है. कितना डिग्री? 5 डिग्री. फाई का Lags वैल्यू by कितना 5 है? sir. Yeah, it is lagging by 5 because L मजबूत है ना यहाँ पर, Yes sir. XL EL is मजबूत है greater ना. than EC. अगर XC ज्यादा होता तो ये प्लस आ जाता. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes sir. माइनस कब आएगा? जब इंडक्टर लीड करेगा, और प्लस कब आएगा? जब कैपेसिटर लीड करेगा. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? सो दिस वाज द होल फाइनल टच फॉर LCR सर्किट. बराबर है? आगे बढ़ूं मैं? Yes sir. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट सर? पावर इन एन LCR सर्किट. पावर का फॉर्मूला क्या है? VI. EI. पावर इज E को लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी.
I को लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, अभी फाइंड किया था। अरे मैन वी आर डन इट राइट नाउ। हेलो 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 हेलो। So, इसको सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट इंस्टेंटेनियस पावर इज ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। हेलो, बट दिस पावर इज विच पावर? This power is which power? Instantaneous power. Instantaneous power, because it's a function of time. हमको इससे थोड़ी मतलब है, जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, हमको किससे मतलब है? average. Average power. एवरेज पावर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद में आपको डेरिवेशन देख लेना। द फॉर्मूला केम व्हाट? ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। इसको लिख सकते हैं ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो भाई, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. Lastly, I'll discuss resonance and then we'll go to the sums. कौन से दो रेजोनेंस थे? सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है? LCR this was E, मालूम है ना? E is E naught sin omega t and I was I naught sin omega t minus phi. बोलो। अच्छा, now look over here ना, conditions. Suppose frequency is very high, the XL will be greater than XC ना, because XL का फॉर्मूला क्या है? XC का फॉर्मूला क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XL डोमिनेट करेगा ना। Yes, sir. अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो? Exceed only. मगर एक फ्रीक्वेंसी ऐसे आता है बीच का, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट विच XL is XC. ओके, सो इफ आई इक्वेट एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? तो F will become 1/2 pi root LC. हेलो, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा इसको? Resonant. Resonant frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? XL equals to X. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अगर XL XC सेम हो गया, मेरी बात सुनो, Z क्या हो जाएगा? Z किसके बराबर हो जाएगा? Purely resistive. R, sir. या Z will become equal to R. पहला कंडीशन। हेलो, और अगर XL XC सेम हो गया तो बेटा E का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। बट XL XC सेम है तो EL EC भी सेम है ना, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। So can I say what will be E equal to? ER. Yeah. Why? Because EL will become equal to EC. EC. Yes, sir. What is the formula for current? Can I say E will become I into Z? Because the opposition is Z over here. Hello. But in resonant case, what will be the opposition? Z is equal to R. So E का formula क्या हो जाएगा? I into R. IR. मतलब it will behave like a Yes. purely which circuit? Resistive. अरे बोलो ना भैया, yes or no? Z R के बराबर बन गया ना, क्या सोच रहे हो इतना? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो कैन आई से अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया तो करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज, Okay. मतलब ER एंड I विल बी इन द सेम फेज। अभी तो किया था। सो कैन आई से द फेज एंगल विल बिकम इक्वल टू 0। Zero. 0. सो cos phi विल बिकम इक्वल टू 1। 1. सर हमको तो सब बाउंसर जा रहा है, कुछ आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, बराबर है कि नहीं है? हेलो, Yes, sir. can I say over here, since the opposition is becoming minimum, the current will become maximum.
अपोजिशन Z था ना, Z था ना, Z के पास कितनी चीजें थी, 1 2 3, अब इसने इसको मार दिया तो Z किसके बराबर हो गया, R ना, Z becomes R which is minimum, so opposition is becoming minimum, so can I say current over here becomes क्या, Maximum. तो अगर Maximum. करंट का ग्राफ में बनाने जाओ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, can I say current will become this way, can I say at resonance frequency current is becoming maximum, and what is the value of the current at that moment, E by R, E by R, can I say at this frequency impedance becomes minimum, this is impedance का ग्राफ, बराबर है क्या, this is Z and this is I, सही है क्या, हेलो Yes, sir. क्या यार तुम कितने जन है, 27 people have joined, अरे वाह, are you all understanding what's happening? Yes, sir. Chalo, last concept which I'll discuss, then I'll go to the GTB sums. Which resonance are we speaking about? Sir, can you go to the previous slide once? जल्दी हाँ बेटा, टाइम नहीं है. Finished? Yes, sir. Thank you. Parallel resonance में क्या होता है, यहाँ पर L है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर EMF. बराबर, यहाँ से करंट जाएगा I. Can I say I will split into two parts? Hello? Yes, sir. But यहाँ पर in one case, यहाँ पर the current will lag the EMF, and यहाँ पर the current will lead the EMF. सही है क्या? रेफरेंस इधर EMF है, रेफरेंस इधर करंट नहीं है, बिकॉज इधर EMF सेम है ना. अरे पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चे, EMF सेम होता है ना, voltage is same. वोल्टेज इज सेम, EMF इज सेम, बट करंट हम लोग एक लीड है एक लैग है. सो कैन आई से नेट करंट विल बी IL माइनस IC. तो ओम्स लॉ में तो हम लोग प्लस करते थे, बट यहाँ पर हमको माइनस क्यों करना है, बिकॉज वन इज लीडिंग एंड अदर इज lagging. So one is leading by 90 and other is lagging by 90. So how much is the total phase difference between them? 180. हेलो, अरे यार एक आगे है 90, एक पीछे है 90, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180. तो इट विल बिकम माइनस ना, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर ना. 180 मतलब फेजर में क्या होता है, ऑपोजिट टू ईच अदर, बराबर है क्या. तो आई नेट को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा E by XL, और इसको लिख सकते हैं E by XC. हेलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, समझ में आ रहा है क्या बात. E तो कांस्टेंट है ना, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है. अच्छा, एट रेजोनेंस क्या होने वाला है, एट FR क्या होगा, FR का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई रूट LC. एट FR क्या होगा, XL will become equal to XC, बराबर. So if XL will become equal to XC, can I say I net will become equal to 0? Hello, अरे look, put it in this ना, denominator same, numerator same. I net will become equal to 0. I net 0 हो गया मतलब impedance becomes maximum. So this graph, I don't think so parallel resonance है आपके पोर्शन में, कि मैं ऐसे टाइम पास करा रहा हूँ. Let me see, it was there last year. एक मिनट यार, इधर देखने दो मुझे, नहीं है, निकाल दिया पोर्शन से. पावर है, हाँ ठीक है, ये कल पढ़ाऊंगा मैं, बट अभी देख लो, अभी सीख लिए तो इतना सीख लो ना. करंट कितना हो जाएगा, हेलो, 0. करंट मिनिमम हो गया. Can I say this is current and impedance will become maximum ना बेटा. हेलो, Yes, sir. this is not in syllabus, syllabus से निकाल दिया गया है, out of syllabus, but it will be there in your JEE NEET, which I'll be teaching you tomorrow. Hello, understood? Yes, sir. Okay, so I am starting with the GTB sums, not wasting time. We're starting with the slides now. So,
Sir, electromagnetic induction, you had said coaxial cables derivative. Coaxial cable is not there. Again, it's not there. I've checked. Oh, it's It is not not there. there. Okay. Not there. ठीक है, चलो Yes. आगे बढ़ते हैं. ये दिख रहा है सबको? You can see green slide. Yes, sir. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अभी सबको आता है ये. Which is more dangerous, AC और DC? और if your GTB, और your GTB क्या डाइजेस्ट के सम्स है, 16 नंबर का सम है. Which is more dangerous, AC और DC? सपोज हम लोग DC का 220 वोल्ट लेते हैं, ओके, और AC का भी 220 वोल्ट लेते हैं. AC का भी कितना लिया हमने? Whenever you speak about 220 वोल्ट AC, मतलब ये कौन सा वैल्यू है? RMS. RMS. Average value. इसका RMS वैल्यू. एवरेज वैल्यू तो 0 होता है. हेलो, Yeah, yes, sir. तो आपको इससे एक बार शॉक लगा और इससे एक बार शॉक लगा, तो किससे ज्यादा झटका लगेगा आपको? ऑलवेज रिमेंबर AC इज मोर डेंजरस. व्हाई? So because it is by root 2 value. हाँ, बिकॉज एक्चुअली आपको पीक वैल्यू जो लगेगा, यू नो दैट ERMS इज E नॉट बाई रूट 2. ERMS 220 है, E नॉट बाई रूट 2. So E naught is going to become, when you multiply this by root 2, will become 311 volt. तो इसका पीक वैल्यू ये है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 220 वोल्ट का झटका भारी है कि 311 वोल्ट का? ऑब्वियसली 311 वोल्ट का झटका भारी है. तो ऑब्वियसली हु इज मोर डेंजरस? AC इज मोर डेंजरस. अब सब आपको आता ही है. we'll just go with the flow फटाफट. And alternating voltage is given by E is given as 6 sin 314t. चलो कंपेयर करो. E is E naught sin omega t. What is E naught? 6. 6. Omega. 1. तो मिल गया. कैलकुलेट द पीक वैल्यू. तो मिल तो गया पीक वैल्यू. हेलो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 2 pi f is 314. You can calculate this in hertz. I am not writing. बराबर है ना? हेलो, तीसरा क्या निकालना है? क्या टाइम पास समझा यार. क्या निकालना है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? 1 by Two F. bars 1 of by F. frequency. फोर्थ क्या फाइंड करना है? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज 2 मिलीसेकंड. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब E ढूंढना है. E का इक्वेशन क्या था? sin 314t. इसमें आप एक काम करो, T की जगह क्या पुट करो? 2. 2 व्हाट? 2 into 10 raised to minus 3. हेलो, ओके. दिस आंसर, दिस विल बी इन रेडियन ना बेटा. हेलो, Yeah. ये कितना हो जाएगा? 6 sin, व्हाट इज 314 into 2? 628. 0.628. Yes. हेलो, Yes, sir. 0.628 radian. How to convert radian into this much? What? Degree. डिग्री. कैसे डिग्री? Pi by 180. पाई बाय 180 या 180 बाय पाई? क्या? Oh, sorry, 180 by by. हाँ, फिर पाई का वैल्यू कितना है? 3.14. इसका वैल्यू आप निकाले, कितना होता है ये? जो भी होता है देख लो कितना आएगा, देख लो ना. ये हाफ हो जाएगा क्या? नहीं, 6 पाई 5 टाइम जाएगा ये. हेलो, आई डोंट थिंक सो. जो आएगा देख लेना. So it's sin 90 and then 6 into 1. sin 90 will come. No, Yeah, sin 90. how will 90 come over here? Yeah. 90 कैसे आएगा भाई? बराबर है ना? 90 कैसे आएगा? Got it? Yes, ये sir. 5 1s are 5 5 3s are 36. 15. ये 36 आएगा. तो 36 टेबल से देख के लिख लेना. गेटिंग है ना? sin 90 कैसे आया? रॉन्ग है ना? Yes, sir. ओके, करेक्ट है. बुक में रॉन्ग दिया रहा है, आप करेक्ट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है.
Question number 23. Orally. Come on. Please help me यार, अभी टाइम पास मत करो इधर. E का इक्वेशन क्या है? E naught sin 140 sin 314 चलो ढूंढो. E नॉट कितना है? 140. ओमेगा बराबर है क्या? इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर. कितना रेजिस्टर? 50 ohms. फाइंड द फ्रीक्वेंसी. कैसे ढूंढना है फ्रीक्वेंसी? Omega is 2 pi f. So f will become omega by 2 pi. सेकंड क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? RMS. अच्छा आरएमएस वैल्यू ऑफ व्हाट यार, पढ़ो तो बराबर. करंट. अच्छा कैन आई से ई नॉट इज आई नॉट इनटू आर. ई Yes, नॉट sir. कितना है? 140. आई नॉट मालूम नहीं. आर कितना है? 50. वोल्ट भी आई नॉट इक्वल टू. 14 by 4. बट ये थोड़ी मांगता है. ये कौन सा वैल्यू है? P. वैल्यू. आई नीड विच वैल्यू? RMS. RMS. ये 14 by 5 into root 2 एम्पियर. बोलो. Yes, sir. Is it fine ना? Is it fine? I Yes. don't think so. I'm going fast also. Yes, sir. Yes, sir. और यार ये बेसिक टाइम पास है ये चीज. Yes, sir. Could you come back? या Yes, sir. Yes, sir. 39 sum. 39th question. What is given? चलो. Inductor of inductance L 200 millihenry connected to an AC source of peak value E naught 210 volt and frequency 50 hertz. Calculate the peak current. क्या निकालना है? I naught. Instantaneous value of the source when the current is at the peak value. Hello. Yes. Instantaneous value of the source मतलब क्या निकालना है? E निकालना है. E when current is at which value? Peak value. Okay. अभी मेरी बात सुना, मजा आएगा सब लोग को. देखो इधर मेरी बात सुनो. सबसे पहले क्या निकालना है? पीक करंट. यू नो द फॉर्मूला. E नॉट इज I नॉट इनटू XL. XL. अरे भाई आर मत लिखना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. क्या टाइम पास मत करो यार. इधर E नॉट क्या है? 210 है. I नॉट. XL को लिख सकते हैं 2 पाई FL. Yes. 210 210 I नॉट 2 pi f is 50. L is 200 into 10 raised to minus 3. इसका वैल्यू I नॉट मिलेगा 3.34 एम्पियर. ये देख लेना आप लोग. हेलो. दिस इज ओके. ओके. दिस इज Yes, ओके. sir. अच्छा अभी आप मुझे एक बात बताइए कि क्या पूछा है. ये तो फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है. ठीक है. पहला. सेकंड वाला क्या पार्ट पूछा है? Instantaneous value of the voltage when the current is at the peak value. अच्छा can anyone tell me who leads and who lags in L? L. Current lag. Current lag. Current lags in L. तो अगर मैं EMF का डायग्राम बनाऊं तो you know EMF will be this way. बराबर. हेलो. I का डायग्राम कैसे बना था? How was I का डायग्राम if you remember? Hey man, I का डायग्राम कैसे? Negative cos curve. Negative cos. Very good. We had done this. बोलो. ऐसे कुछ है? हेलो. Yes. Can I say when the current is at the peak value, instantaneous value of EMF is 0? अरे भाई ये जब करंट पीक पे है तो EMF का वैल्यू कितना है? 0 है ना? क्या बोल रहा हो यार, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको. Yes, sir. हाँ भाई. Yes or no? Yes, sir. So what is the Yes, instantaneous sir. voltage? 0. 0. At that moment current is at which value? Max. Because if you see this is E naught sin omega t. If you see this is what?
तो इधर cos 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा ना, और इधर वही 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन फंक्शन है। सर आई हैव लेफ्ट मैथमेटिक्स एवरीथिंग है क्या? Yes, sir. हाँ भाई 40 an AC circuit consists of only inductor of inductance 2 Henry, current is represented by a sine wave of amplitude, मतलब I नॉट दिया, एम्पलीट्यूड मतलब उसका पीक वैल्यू होता है ना, सही है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, क्या निकालना है, EL निकालना है, EL, हेलो मैन, EL, हेलो, Yes, sir. फॉर्मूला EL का फॉर्मूला क्या है, I into XL, हेलो, Yes. EL I का नाम, I का वैल्यू कितना है, 0.25. 0.25. 0.25, एक मिनट ध्यान से, इधर XL क्या रहेगा, 2 pi f. बराबर है 8 को 4, क्या हो गया, EL क्या आया, EL क्या आया, Pi by 6. क्या आया भाई 60 पाई वोल्ट, क्या ये आंसर है, नो, No. दिस इज विच वैल्यू, Peak was. बिकॉज यहाँ पर आपने पीक लिखा है, तो ये भी कौन सा आएगा, Peak. Not. जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा है, बाय डिफॉल्ट इट इज विच वैल्यू, RMS. RMS. टिल दे डोंट स्पेसिफाई पीक इट इज RMS, तो RMS निकालना पड़ेगा, तो कैन आई से E RMS अक्रॉस L is E naught across L divided by root 2, Yes, sir. this answer will become 60 pi divided by root 2 2. volt will be the answer, yes or no sir, Yes. बोलो, Yes, sir. I hope I am not going fast, and if I am going fast also you should pick up with me यार, कितना टाइम पास ये सब है, हेलो क्या हो रहा है, 50 क्या बोल रही है, चलो जल्दी फास्ट फास्ट बताओ, क्या है ये, कैपेसिटर कितना माइक्रोफैरेड, EMF कितना है 250 sin 100 pi t, वैल्यू निकालो, E नॉट कितना है 250, ओमेगा कितना है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, राइट द इक्वेशन फॉर करंट, okay and give the reading of AC ammeter, अच्छा ammeter reads which value, ammeter reads RMS value, यार वीडियो देखा करो यार, AC ammeter reads which value, RMS value, instantaneous current मांगता है, अच्छा in case of capacitor who leads and who lags, Current leads and EMF lags. so what will be the equation of current, if you know, if E is E naught sin omega t, then I will become I naught sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बोलो, करंट का इक्वेशन मांगता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अरे बोलो ना भाई, यस और नो, I इज इक्वल टू आई नॉट को लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई एक्सएल के एक्सी, एक्सी कॉस ओमेगा टी, आई विल बिकम ई नॉट कितना है 250, एक्सी को लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्सी, इट इज नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, बराबर है कॉस ओमेगा टी, यार क्या कर रहे हो, हेलो, ये हो जाएगा 250, ओमेगा सी ऊपर चला गया, 100 पाई और सी इज 2 इंटू 10 रेज टू -6, कॉस ओमेगा इज 100 पाई इंटू टी, बोलो, सो आई विल बिकम 0.157 कॉस 100 पाई टी, इक्वेशन मिला आई का, अच्छा इसमें आई नॉट कौन सा है, इसमें ये आई नॉट है ना, हेलो, Yes, sir. मेरे को क्या मांगता है, क्या मांगता है, RMS.
Getting it? Getting it? Yes, sir. एटलीस्ट लेक्चर बैठेंगे भी ना, कुछ लिखेंगे भी नहीं ना, तो भी कुछ दिमाग में बैठेगा यार. ओके, नीट और जेई में तो बहुत हेल्प करेगा ये. यही है, मान लो मेरी बात, यही जेई और नीट में सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. देन ऑल्सो आई एम टेकिंग 3-4 लेक्चर्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर तो मैंने होमवर्क दे दिया था इसी, भाई करो खुद से. 50 सेकेंड. 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, क्या दिया है सी का वैल्यू? 100. इज चार्ज टू वोल्टेज ऑफ हाउ मेनी वोल्ट? कितना वोल्ट है? 50. ये कौन सा वैल्यू है? डिफॉल्ट आरएमएस है. हेलो हेलो. Yes, sir. The source is supplied is removed and the capacitor is connected across an inductor of resistor reactance. Reactance मतलब inductive reactance है ये. हेलो, इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये क्या है? एक्सएल है. Excel. As a result of which 5 ampere current flows through the inductance. What is the current through the inductance? How much? 5 ampere. Hello, are you all understanding? Yes, sir. मुझे बताओ कैसे करेंगे इसको, क्या निकालना है हमको? सबसे पहले वैल्यू ऑफ इंडक्टर निकालना है. सबसे पहले क्या सिनेरियो? हु इज कनेक्टेड इनिशियली? इनिशियली कौन था? सिर्फ कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस क्या है? 50 volt. 50 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू है. यहां से करंट फ्लो होने वाला है. व्हाट विल बी द करंट? E by XC बराबर. XC. हेलो. Yes, sir. E by XC. सो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज XC? 1 upon omega C. What is I equal to? E by omega C. सही है. हेलो. यहाँ पे I पता है क्या आपको? Do you know the value of I? एक मिनट. Source is removed and the capacitor is connected. I'm not wrong. एक मिनट. See, कह रहा है एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया 50 वोल्ट से. चार्ज किया कितना वोल्ट से बेटा? 50 वोल्ट से. ईएमएफ कितना लगाया? 50 वोल्ट. Then the supply voltage is removed and the capacitor is now connected through an inductor of reactance this much. So now it is connected through a inductor. कितना वैल्यू है इंडक्टर का? एक्सएल का 10 ohms बराबर. और इसको कितना वोल्टेज से भर दिया मैंने? 50 वोल्ट बराबर है स्टार्ट में. As a result, the current of 5 amperes will flow. Current. Can I say this is constant current which is going to flow through the whole circuit? Yes, sir. बोलो ना, करेंगे ना? Okay, constant current which is going to flow through the whole circuit. अब मेरी बात सुनना बेटा, ये हो गया. अच्छा, इसके अक्रॉस अगर मैं बात करूं, ये आए है, ये सी है, इधर के अपोजिशन का नाम क्या है? XC. तो सिर्फ इधर की मैं बात करूं, कैन आई से E C is I into XC? हेलो, E is IR ना? E is IR, तो EC is I into XC. What is EC at this instant? 50. 50. What is I at this instant? 5 ampere. 5 ampere. So what will be XC? 10 ohms. अच्छा सर, एक तो एक चीज अजब हो गई. XC का वैल्यू कितना है? XC का वैल्यू कितना है? 10 ohm. XL का वैल्यू कितना है? 10 ohm. क्या है? कौन सा कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन है. Resonant. Yes. Hello, what are you speaking, man? Are you all understanding what's happening? Hello. Yes, sir.
can I say at this moment xc will become equal to xl? सही है क्या? हेलो, Yes, sir. xc का वैल्यू कितना है? xc का वैल्यू आपको मिला 10, xl को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा l। Yes, तो sir. अच्छा, ओमेगा कहाँ से मिलेगा? ओमेगा कहाँ से मिलेगा? ओमेगा यहाँ से मिलेगा ना। xc is what? Omega एक मिनट, xc will be 1 upon omega c, Omega C. 1 upon omega c। xc कितना है? 10 है। 1 upon omega, ओमेगा पता नहीं है। c का वैल्यू कितना? 100 माइक्रो। हेलो, 10 is to minus 4 into 10 it will become 10 raised to कितना हो गया ये? 1000 हो गया ना। 103, yes, sir. उठा के put it here, ये हो गया 1000 L, so L will be 10 raised to minus 2 Henry. Got it? Yes. Hello, do you understand? Yes, sir. Next question, 53rd, come on, help me out. 15 microfarad capacitor, C का वैल्यू कितना है? Is connected to a RMS value of 220 volt, frequency 50 hertz. Find the capacitive reactance XC and the current, both peak and RMS दोनों in the circuit. If the frequency is doubled, what will happen to the capacitive reactance? वो देखते हैं बाद में। पहले XC निकालो। XC का फॉर्मूला क्या है? 1 by omega c. 2 by FC. You know all the values, right? 1 upon 2 by F is 15 to C का value is 15 micro, that is minus 6. XC का value will get it in ohms, correct है? Yes, sir. You will get it as 212.2. ये मिल गया। Second क्या चाहिए? I naught. Can I say ERMS is IRMS into XC? Yes, sir. ERMS कितना है? 220. IRMS मालूम नहीं है। XC का वैल्यू तो हमको मिला ना 212.2, तो IRMS यहाँ से आपको दिखाई देगा 1.037। I naught कैसे मिलेगा? Into √2। Hello, this will Yes, become sir. 1.47 ampere. This is all time pass things, हाँ please. Hello, कोई Yes, sir. Yes. टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो क्या होगा बेटा? XC क्या रहता है? 1 upon 2 by Inversely FC. proportional. Can I say XC is inverse to F? So if the frequency is doubled, XC will become आधा, XC will become half of XC1. And if XC becomes half, then current will double ना? Double. Hello, Yes, sir. Yes, sir. because XC is becoming half because ERMS is constant ना? ठीक है यार, बोलो तुम लोग तो आगे बढ़ते हैं। Yes, हेलो, sir. अब आते हैं LCR सर्किट पे। हमने L भी कर लिया, C भी कर लिया, R भी कर लिया, बराबर है। अब किस पे आते हैं? LCR सर्किट पे। यस और नो? Yes, sir. चलो, व्हाट इज गिवन L? 100 मिली हेनरी, 0.1 हेनरी। कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड, रेजिस्टर 15 ohms, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन EMF। कौन सा वैल्यू? RMS वैल्यू। कुछ नहीं दिया तो RMS रहता है बाय डिफॉल्ट। हेलो, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पीडेंस। अरे बहुत मेहनत का काम है। इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? Z का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले XL निकालना पड़ेगा। तो XL निकालना पड़ेगा, बराबर है क्या? So it's at resonance. So XL and XC cancel out. ओहो, So आधे आ रहे, मजा आ गया। It is at resonance. Okay, I didn't read only. कुछ टेंशन ही नहीं है। Impedance at resonance. What is the impedance at resonance? At resonance Z equal R. R. खत्म, कहानी खत्म। ओके, कहानी खत्म। क्या से at FR
XL will become equal to XC, so Z will become equal to R, and what is R? 15 ohms. पहलो वाला आंसर डन. सेकंड वाला आंसर करंट एट रेजोनेंस. अरे मजा आ गया. E is IR, E is IZ होता था ना, बट Z की जगह तो R बन जाएगा. E कितना है? 150. R कितना? 15. तो ये IRMS कितना हो गया? 10 ना. Yes. हेलो, ये RMS लिया था ना, ये RMS लिया ना यार, ये RMS है, तो ये भी क्या आएगा? RMS 120. 120 volts. 120 है क्या ये में? Yeah. ओहो ठीक है. दिस इज 120/15. हेलो, ठीक है ना? ओके, दैट इज अंडरस्टूड. Yes, पर यू sir. अंडरस्टूड. ओके, तीसरा वाला क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? FR इज 1/2 by 1/2 root of LC. 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 Done sir, done. Hertz. हेलो, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, क्या हो रहा है? sir. क्या हो रहा है यार? बोलो ना, टाइम पास करना है क्या है? चलो, अब ये पूरा हफ्ता हम लोग ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ टाइम पास करेंगे. गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 62 पर आता है. अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी, क्या दिया? L कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 1 ohms. इज कनेक्टेड टू ERMS. ERMS कितना वोल्ट? 200 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी कितना? हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज. फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. अरे मजा आएगा, अभी सब ढूंढना पड़ेगा. बराबर है क्या? हेलो, Yes, हेलो, sir. सबसे पहले क्या निकालने का? XL 2/FL. बोलो. हेलो, Yes, sir. ये निकालेंगे आप. आपको किस में आएगा? ओम्स में आएगा. सही है. XC तो है नहीं. R मालूम है आपको. Z का फॉर्मूला क्या है? R square plus square. X square. प्लस XL स्क्वायर. सही है ना? बिकॉज XC तो नहीं है. ये सब कैलकुलेशन भारी है. हाँ भाई, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब बराबर. हेलो, ये लगता आसान है? यस और नो? ये सब 4 मार्क के क्वेश्चन है. 3 मार्क दिया है, बट 4 मार्क के क्वेश्चन है. दूसरा क्या पूछा है? क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट डन. दूसरा पार्ट क्या पूछा है यार? बोलो ना, क्या पूछा है? Time lag. Time lag. टाइम लैग. नो, सबसे पहले मुझे फेज लैग निकालना पड़ेगा. है ना? क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? फेज डिफरेंस. क्या फेज डिफरेंस मतलब? हेलो, यस और नो? यस और नो? Yes. ओके, मजा आएगा. क्या 2 फॉर्मूले थे मेरे पास फाई के? Cos. Cos Tan phi. Can I use phi tan is phi is XL Tan by R phi. या tan phi? जो भी आपको इस्तेमाल कर सकते हो. बराबर है क्या? XL कितना है? XL मालूम नहीं है. XL जो भी है ऊपर से इधर से ले लेना. चाहिए क्या? हेलो, Sir, यस. so we could use cos phi, no? cos phi is R by Z. अरे एनीथिंग यू कैन यूज बेटा. cos phi is R by Z, मगर वही तो cos phi का इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा ना phi निकालने के लिए. XL आपने निकाला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप जो यूज करना चाहते हो यूज करो. यार ये 2/FL हो गया और ये R हो गया. इसका phi का वैल्यू आपको मिलेगा. phi will be tan inverse of this number ना. हेलो, Yes, sir. this answer, I'm just writing the answer from the digest, is 72.35 pi by 180 radian. याद रखना, ये रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है? Phase. क्या निकालना है? फेज लैग नहीं है. क्या निकालना है? time lag. टाइम लैग. Time lag. ओके, टाइम लैग को कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम लैग? ये फॉर्मूला सुना है? फेज डिफरेंस इज ओमेगा टी. ऑसिलेशंस. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. तो ये 5 हो गया. 72.35 पाई बाय 180. बेटा ओमेगा को कैसे लिख सकता है? 2 पाई बाय 2 पाई एफ लिख सकता है इंटू टी. पाई पाई वैसे ही उड़ जाएगा. ये हो गया 72.35 बाय 180. 2f. f कितना है? 50. ये हो गया 100. ये तो यहाँ से t का वैल्यू आपको मिलेगा 0.004 सेकेंड्स. मेथड समझा क्या आपको?
this formula will again come in wave motion, where I'll explain in detail कि कहाँ से आता है ये equation. हेलो Yes, sir. देखो एकदम आसान तरीका है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. टाइम टी में कितना फेज लगता है? 2 पाई. हेलो मैन, हेलो. Yes, sir. तो 5 में कितना फेज लगेगा? लगेगा टी. So t will become what? 5t by 2 pi. तो इसको लिख सकते हैं what is 2 by t? ओमेगा ना. What will be 5 equal to? Okay. Omega t. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. I'm going with the flow. है ना, मतलब कोई चीज सिखानी नहीं, आपको आती है सब चीजें. Next question. 74. Okay, help me. 100 ohm resistor connected to ERMS कितना है? 220. Frequency. T. What is the RMS value of the current? अरे मजा आएगा, एकदम इजी है. बताओ सबसे पहले क्या निकालना है? E by R. ERMS is IRMS into R. एकदम कोई लेवल नहीं है यार. 220 IRMS R कितना है? 100. तो IRMS कितना रहेगा? 2.2. हेलो, ये मिल गया. व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल? पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? ERMS RMS IRMS RMS. cos phi है, भूलो मत. But in case of resistor, phi is 0 because both are in same phase ना. Yes, What sir. man, E and I are there in the same phase. तो cos 0 कितना होता है? 1. तो पावर क्या हो जाएगा? E into I. Got it. E कितना है? 220. IRMS 0.22. कितना वॉट में बदल गया? बोलो भैया, यस और नो. हेलो हेलो. Yes, sir. न्यूमेरिकल्स भी आप करके जाएंगे तो 50% आपका थियरी ऐसे ही आता है. आपको बैठ के वो रट्टा मारना पड़ेगा. वो तो करना ही है. मतलब जब दिसंबर या जैन या जब भी आप सिलेबस शुरू करते हैं बोर्ड्स का, तो आपको न्यूमेरिकल्स तो आते ही रहेंगे. न्यूमेरिकल्स का आपको 50% का जरा भी टेंशन नहीं लेना है. ओके, गेटिंग इट? हेलो. Yes, 70 मार्क्स या 80 मार्क्स अगर पेपर चेंज होता है, जो भी है, 70 मार्क्स के एग्जाम में से 35 मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं. बाकी थियरी बैठ के आपको थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी. गेटिंग है ना? Yes, sir. अभी ये साल प्रैक्टिकल्स होते हैं या फुल एग्जाम होता है, दैट वी डोंट नो ना. शायद 100 मार्क का एग्जाम हो जाए पूरा. because you have not done any. हो रहा है क्या कॉलेज में? प्रैक्टिकल हो रहा है ओरली ऐसे कुछ वर्चुअल? Right journal. हाँ, राइट होनी चाहिए. तो प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है, या तो अगर होगा भी तो दे विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स. और अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है कोई एग्जाम, तो दे विल कंडक्ट 100 मार्क के एग्जाम में. So they asked us to finish journals. They said when college will reopen, we just have to enter the readings. 77 प्रैक्टिकल में तो ऑब्वियसली यू विल गेट 24 के ऊपर तो सबको देते ही है आउट ऑफ 30. कोई टेंशन नहीं है. ओके, प्रोवाइडेड यू अटेंड द प्रैक्टिकल्स. 77 पर आते हैं. क्या दिया है? तो थक गया यार ये. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर. क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है ना. which would put in series with an R of 10 ohms and make power factor equal to, power factor मतलब क्या? cos phi कितना बनाना है? हाँ, assuming 80 वोल्ट to 100 हर्ट्ज, मतलब ERMS कितना है? 80 वोल्ट. और फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 हर्ट्ज सप्लाई. सही है क्या? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. अच्छा, कौन लगाया किसके साथ? R को लगाया C के साथ. सही है क्या? हेलो. तो Z क्या हो जाएगा? √R square plus XC square. cos phi का फॉर्मूलो R by Z. R by Z. cos phi आधो. हेलो.
मतलब z is 2r ना, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो, Yes, z is sir. what, under root r square plus xe square is a 2r, square both sides, 3r square will become xe square, so root 3r will become xe, but xe का value is what, अरे what man, 1/2 pi fc, हेलो, गेटिंग इट, तो c क्या हो जाएगा, 1/2 pi f रूट 3r, वैल्यू डालो इसमें, फैराड में मिलेगा। हेलो, क्या मैं रॉन्ग कर रहा हूँ कुछ, बताओ ना, हेलो, Yes, sir. Okay. परफेक्ट राइट, Yes. पीपल हैव लेफ्ट। ओके, सब रेगुलर वाले ही है, थियरी वाले हैं भाई, थियरी वाले तो बराबर मेहनत करो यार थोड़ा, बाद में हम लोग नवंबर के बाद में फिर से एक बार रिवीजन करेंगे थियरी वाले, ओके, डोंट Yes, वरी sir. अबाउट एनीथिंग, वी विल डू होल रिवीजन ऑफ थियरी अगेन, ताकि आपको पूरा ओके लर्न हो जाए, ओके, वी नॉट गोइंग टू क्लोज दिस टाइम, एंड जेई वालों के साथ में भी आई एम गोइंग टू डू लास्ट ईयर के पेपर्स, 2018 और 19 के पेपर्स हम लोग हेलो करेंगे, Yes. सो दैट ओके यू विल गेट एन आइडिया, और नीट वालों के साथ तो पीछा ही नहीं छूटता है, नीट वाले तो हमेशा रहते ही है साथ में, अंडरस्टैंड। 81 यार बताओ यार, इन सीरीज एल आर सर्किट एक्सएल कितना है, किसके बराबर है, आर के बराबर, द पावर फैक्टर इज P1, पावर फैक्टर कितना है P1, कैन आई से P1 इज योर cos phi, in the first case what is cos phi equal to, R is z, z को Z. लिखेंगे z1, which could be written as z is under root r square plus xl square, बराबर, अरे सिर्फ पहला लाइन पढ़ रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो यार इधर, but what is xl and r, sir both are same, Equal. both are, ये देखो ना यार both are same, मैं कुछ नहीं फर्स्ट लाइन के आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r square plus r square, तो रूट 2r square, तो कितना हो गया भाई, 1 by root 2, सर मजा आ गया, इनिशियल cos phi is मतलब P1 का वैल्यू कितना आया, 1 by root 2, इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो, when the capacitor is such that XL is equal to XC, so when XL becomes equal to XC, Z becomes equal to what, R. 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 So can I say at that moment the circuit becomes purely resistive, Yes, sir. so cos phi will become equal to 1. Hmm. Arey man, what are you speaking, sir? When XL becomes equal to XC, Z will become equal to R, so cos phi will become equal to 1. That means P2 will become equal to 1. Mm. So what is the ratio of P1 to P2? एक को सम है क्या यार? 1 by root 2 only. हाँ, 1 by root 2. Hello? Yes, sir. क्लियर है, मैं थक गया है, कितने समझे और 2-4 समझे और 2-4 ही है बस, ज्यादा नहीं है। 82 a sinusoidal voltage of peak value मतलब क्या दिया है, E0. फ्रीक्वेंसी, LCR सर्किट, R कितना है 3 ohms, L कितना है 25.48 मिली हेनरी, कैपेसिटर कितना है 796 माइक्रोफैरेड, फाइंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, यार वही मेहनत करने वाला सम है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, XL XL. 2 pi FL, बोलो इसका आंसर आपको आएगा 8 ohms, XC 1/2 pi FC, कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आपको आएगा 4 ओम। अरे यार बोलो ना, टाइम पास है एकदम, Yes. ये सब कैलकुलेशन आपका है, ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, सब निकालना पड़ेगा बराबर। So Z this कैसे we will have निकालेंगे, to do with log, no? log, दिस होल चैप्टर हैज टू बी डन विद लॉग्स,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. So Z will become equal to 5 ohms. हाँ भाई. So in board exam we get square root table. ये स्क्वायर रूट है कि इनवर्स है? स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा. तो उससे एंटी लॉग से ही करना पड़ेगा ना, हाफ में. हाँ वो जो है वो वैसे ही करना Okay, पड़ेगा. okay, yes. एक सम आएगा पूरे पेपर में, एक सम आएगा ऐसे सब थोड़ी No, आने so वाला. I'm just asking anti-log because chemistry also we require, na, that's why. हाँ स्क्वायर रूट आई डोंट थिंक सो दे रहे, दे देंगे तो अच्छा है यार. ओके यू कैन आस्क योर केमिस्ट्री टीचर, देते हैं तो ठीक है. देख लेना आप लोग, जो कॉलेज का लॉग बुक देखा है आप लोगों ने उसमें रहेगा तो. This book doesn't have, that's why. हाँ तो डजंट हैव तो नहीं है उसमें ही, वही तो मिलता है आपको. Okay, ठीक है sir. चलो इधर जेड मिल गया. जेड मिल गया भाई. सेकंड क्या ढूंढना है? कम ऑन फास्ट मैन. फेस डिफरेंस क्या निकालना है? फाई. यू नो cos phi is r by z 3 by 5 0.6. Phi will be what sir? Cos inverse of 0.6. Hello, this answer will come 53.1. यार याद है ना 11th में मैंने लेक्चर किया था cos इनवर्स कैसे निकालना है? हेलो याद नहीं है. ठीक है. और तीसरा वाला क्या निकालना है? पावर फैक्टर है. पावर फैक्टर तो ढूंढा अभी, ये पावर फैक्टर ही तो है. cos phi. ये फाई है तो बी और सी साथ में खत्म हो गया. बराबर है क्या? डी वाला क्या है? डी वाला क्या निकालना है? पावर. पावर एवरेज इज ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. हाँ सर ई आर एम एस आई आर एम एस किधर है? ई आर एम एस आई आर एम एस है किधर? मेरे पास है ही नहीं. मेरे पास आई आर एम एस ढूंढना पड़ेगा. अच्छा मजा आएगा. सब लोग इधर ध्यान देना. सब लोग पे अटेंशन ओवर हियर. Not we have, na, so. बेटा मैं एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात. इधर मेरी बात सुनो जरा. मैं क्या आई आर एम एस को लिख सकता हूँ ई आर एम एस बाई जेड? अरे मैन थोड़ा थोड़ा Yes, हटके sir, कर yes, देना. sir, yes, sir. ई आर एम एस बाई जेड. हेलो अरे क्या अग्री कर रहे हो क्या? Yes, sir. ये हो जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर बाई जेड इंटू cos phi. हेलो Yes, what is sir. what is ERMS in terms of E naught? E E naught naught by is root ERMS 2 into by root 2 नहीं है, into root 2 है. into ERMS sorry ERMS is E naught by root 2. E. ERMS by root 2 तो ये E naught square by 2z cos phi. हेलो बोलो. अरे कुछ रॉन्ग कर दिया क्या मैंने? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ERMS E naught का स्क्वायर 283 का स्क्वायर 2z z कितना है? 5 है. cos phi is at 0.6. You will get the answer in what? Rather than finding IRMS and all that nonsense, you just make everything in one equation and solve it, na? Hello? Yes, sir. यार आप अलग से IRMS ढूंढेंगे, फिर I नॉट ढूंढेंगे, वो सब कौन कहाँ है? टाइम किधर है? Yes, sir. Yeah, correct. 4 मार्क का समय है ये, ध्यान रखना बेटा प्लीज. 86 क्वेश्चन. Calculate the value of capacity in picofarad. Pico मतलब क्या? 10 raised to minus 12. Which makes 101 microhenry. ये ले 101 माइक्रो. वो to oscillate with the frequency of what? Resonance frequency of 1 megahertz. मेगा मतलब सही है. Yes sir, what time pass. FR का फॉर्मूला क्या है? रूट एन सी. सही है क्या? यहाँ से निकालेंगे. सी का वैल्यू आपको आएगा 249.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 फैरेड. माइनस 12 फैरेड बाजू में ले लो तो ये क्या हो गया? अच्छा सी फाइंड करने आता है क्या? यहाँ से क्या करना है? स्क्वायर बोथ साइड्स. हेलो Yes, sir. And take C on the LHS आपको. हाँ बोलिए सर ने बताया नहीं. सी फाइंड. हेलो यार बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. अजीब अजीब डाउट आते हैं कभी कभी. ठीक है चलो डन. अरे क्या है
मजा आ गया, खत्म हो गया। हेलो, ऑल Yes, सीटीवी sir. सम्स आर ओवर। और कुछ दिख रहा है? Yes, sir. स्टार बार मार्क कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई हैव टेकन अप। ओके, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो Yes, sir. नाउ थियरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ओवर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियोस, इसमें वीडियोस का काम है, इसमें सिखाने का काम नहीं है। इसमें 2 वीडियोस अगर आपने देख लिया और जेई का वीडियो देख लिया तो आपको अपने आप अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। गेटिंग इट ना? तो कल प्लीज वीडियो देखकर बैठना, हम लोग थोड़े डेराइव भी करेंगे और थोड़े सिनॉप्सिस के सम्स भी करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Tomorrow 7 o'clock, no? 7